दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने को निकल गए। इस वक्त मैं दिल्ली के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के पास हूं। आप देखिए पीछे पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दी गई है और साथ ही साथ धारा 144 भी लगा दी गई है। देखिए बैरिकेड के बाहर, क्योंकि इस तरह से कई सड़कों पर आप सामने देखिए लिखा हुआ है, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ 144 सीआरपीसी लागू है, धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब किसी को भी यहाँ पर जमा होने की इजाजत नहीं है। इस रोड को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यही वो रोड है जो आगे जाकर के ईडी कार्यालय की तरफ मुड़ती है, जहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रखा गया है और पूछताछ चल रही है। तो इसी तरीके से दिल्ली के कई सड़कों को बंद करके ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर ले कि ट्रैफिक डाइवर्ट तो नहीं किया गया। देखिए जैसे एक गाड़ी यहाँ पे आई है, हालांकि ये अधिकारियों की गाड़ी है, लेकिन उसे भी पूछताछ करने के बाद ही अंदर जाने दिया गया। सामने देखिए, सामने ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हैं, वो गाड़ियों को हाथ से इशारा करके बता रहे हैं कि इस तरफ जाना मना है। इनफैक्ट मीडिया की गाड़ियां भी बाहर की तरफ खड़ी है। हमें भी जब आना था तो बाहर की तरफ ही रुक करके पैदल अंदर की तरफ गए थे। तो इस तरीके से पूरे दिल्ली में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी की गई है ताकि कोई भी दिल्ली में अनहोनी ना हो। कैमरामैन सुधीर के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। In a dramatic turn of events yesterday night, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. Well, what we are getting to learn is that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal might appear before the court today. Well, he will be presented by an enforcement agency only before the Rouse Avenue Court. We come to you live from the Rouse Avenue Court, and just to show you what's happening here on the ground, then you can see how the barricading is being done by, of course, the Delhi police, because the forces have been deployed to avoid any kind of law and order menace in the national capital, and it is presumed that Kejriwal might be presented before the court after 11 a.m. Today. Well, it's rather important to understand now because, Kejriwal has already skipped 9 summons in the alleged Delhi excise policy scam case. And also, the political reactions have been pouring in because it's just ahead of the Lok Sabha elections that Delhi Chief Minister has been arrested by ED. Of course, yesterday night ED reached the home residence of the Delhi Chief Minister where they conducted searches and also questioned the Chief Minister. And after that, they escorted him to the ED office. Of course, his medical checkup has already been done. But what next? Who is next? That's the question being raised, because never ever has this question been relevant for any political party as it is now for the Aam Aadmi Party. And when we look at it from a larger perspective, then of course, the Aam Aadmi Party is saying that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be running the government from behind the bars. But it's rather important to understand that it's logistically also, impractical and problematic to run the government from behind the bars. But no law can stop the Delhi Chief Minister to run the government from behind the bars. And just to, again show you how security has been beefed up here, you can see that, of course, personnel have been deployed here in large numbers because a nationwide protest by the Aam Aadmi Party workers has also been called on as they are saying that this is a rule of dictator, and they have also, came down heavily on the ruling government for conspiring to arrest the Delhi Chief Minister. And if I just also tell you that the name of Arvind Kejriwal has not appeared in FIRs filed by ED and CBI, but he has his name has found mention in the supplementary charge sheet
in the ED related to his talks with Sameer Mahindru, the founder of Indospirits, and of course Vijay Nayyar, who is also one of the co-accused in the case. And if I just also tell you that the kickbacks received by the Aam Aadmi Party and the involvement of the South Cartel, because last week we also saw the arrest of K. Kavita, the daughter of former Chief Minister KCR, in the same case. So involvement of the South Cartel is also being investigated in this case. And of course, Aam Aadmi Party has also filed a writ petition under Article 32 of the Constitution, and they also sought urgent hearing by the Supreme Court in the matter last night. But of course, Supreme Court said that hearing is likely to take place today. So that's what we are also learning from our sources. But the larger question: who will be the Delhi Chief Minister, and will Kejriwal run the government from behind the bars? Because there is battle lines have already been drawn. There is both constitutional and the political crisis for the Aam Aadmi Party, and it will be very crucial to see as to when the Chief Minister appears before the court, how it actually pans out. In New Delhi with camera person Himanshu, Akshit Gupta for NewsX. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब कुछ ही देर में भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। पंजाब पुलिस से भी यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जो सीएम की सिक्योरिटी में लोग होते हैं वो लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं, जिससे इस चीज़ का जो अंदेशा अभी तक लगाया जा रहा था कि भगवंत मान अब केजरीवाल से मिलने आ सकते हैं, वो चीज़ स्पष्ट हो गई है कि महज कुछ ही देर का वक्त बचा है अब जब भगवंत मान यहाँ पर आएंगे और अरविंद केजरीवाल के परिवार से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। उनके घर पर अभी कुछ देर पहले गोपाल राय थे, वो मिलकर गए हैं अरविंद केजरीवाल के परिवार से। उन्होंने बताया कि परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है और अब बस कुछ ही देर का वक्त बचा है जब यहाँ पर भगवंत मान आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी पंजाब की पुलिस टीमों के साथ अंदर की ओर जाना शुरू हो गए हैं। जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का घर है वहाँ पर लोगों को अंदर जाने से रोका हुआ है, लेकिन आला अधिकारी डीसीपी यहाँ पर मौजूद है और नॉर्थ दिल्ली के वो यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा पंजाब पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो अंदर जा रहे हैं। भगवंत मान का काफिला कुछ ही देर में बस यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुँचने वाला है। लगातार यहाँ पर जो तेज़ी है जो पुलिसकर्मियों की वो देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इसी बस कुछ देर का वक्त बचा है जब भगवंत मान यहाँ पर पहुँचने वाले अरविंद केजरीवाल के परिवार से वो मुलाकात करेंगे और क्या कुछ बातें होंगी, क्या वो मीडिया से बातचीत करेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में हिस्सा लेना है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर कल रात अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है, आपको उम्मीद होगी कि अरविंद केजरीवाल आपके बेटे को बचा पाएंगे, लेकिन अब तो वो खुद जेल में चले गए। इसको कैसे देखते हैं आप? अब बेटे को कौन बचावेगा, कौन डुबोएगा? डुबोने वाला तो मैं समझ गया कि कोशिश की है बीजेपी ने, लेकिन ऐसा हर समय होता रहा है। सच और झूठ की लड़ाई चली है जब तक दुनिया कायम हुई है, तो उससे कोई हटाता नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग है, दिल्ली की जनता का सहयोग है। अभी और किसी का वैल्यूएशन करना हो तो जरा सा पब्लिक ओपिनियन लीजिए। आपके कहने से कोई बीमार नहीं हो जाएगा बीजेपी वालों। जी, आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उठी थी, करप्शन की मांग को लेकर उठी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के खुद बड़े बड़े लीडर्स तिहाड़ में बैठे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? जेल में बैठे के बहुत हमारे क्रांतिकारी भी बैठे हुए थे। इनके कहने से भ्रष्टाचार नहीं सिद्ध हो जाएगा। यह केवल आने वाले लोकसभा चुनाव को एक डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हैं। दिनेश जी, घर में कैसी बातचीत होती है? संजय सिंह की उपस्थिति नहीं है तो क्या कुछ आपके घर में बातचीत होती है, उसका कुछ बताएं। हमारा घर जो है जरा आत्मबल से भरा हुआ है, वो घबराता नहीं है। किसी के चेहरे कोई शिकन नहीं होगी। हम लोग इसी तरह का, मैं तो एक अभिभावक के रूप में आया था, गांव से आया कि आज बच्चों के साथ ये हो रहा है। संजय नहीं है, संजय होते तो ना आता। अब दिनेश सिंह जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि घर में आत्मबल है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह भले ही तिहाड़ में है लेकिन क्रांतिकारी भी तिहाड़ में थे। ये स्टेटमेंट आप इस वक्त दिनेश सिंह के सुन रहे थे। मैं शुभ कैमरा पर्सन आकाश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.